आई कैन प्राउडली से एक भी दिन आज तक ऐसा नहीं गया कि मैंने इस MOPP फैमिली के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपनी टीम के लिए प्रे ना किया हो। हार नहीं मानने का, यू हैव टू कीप मूविंग। आपको जो आपने लक्ष्य की तरफ सोचा है उसकी तरफ काम करते जाओ। तब मैं इन्वेस्टर थी अब मैं इन्वेस्टर ढूंढती हूँ। आई थिंक सो उससे ज़्यादा डाउन मोमेंट अभी तक अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरी लाइफ में कभी नहीं आया। So we started with 1 lakh rupees of sale and currently we are doing about 85 to 90 lakh rupees of monthly revenue. And almost a 10 CR run rate. Yeah, 10 CR run Annually. rate. कभी भी ये चीज़ मत कहना कि मैं ये कर नहीं सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ। एक को फाउंडर में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी आपको चाहिए होती है, वो है ट्रस्ट। तो पहला कस्टमर यही थे आपके? नहीं, पहले तो सबने मेरा मजाक उड़ाया। दोनों MOPP कर्फ्यू वाले दिन भी, जब आपको ब्रेड और दूध नहीं मिल रहा था बट MOPP अवेलेबल था, कि इस गली में या तो कुत्ते मिलेंगे या MOPP के पराठे। Where we want to be over the next 5 to 7 years is to get to at least 300 kitchens and at least having 10 brands. Hello everyone, super excited to have all of you here. Welcome to the podcast Badhta India Dekho by Car Dekho Group. In this series, we are going to talk about entrepreneurs, their journey, their successes, their failures, their starts, their stops, and everything they have done to reach where they are today. My name is Devojit. I am the founder for Cracked. It is one of the business verticals within the Car Dekho Group. It aims at upskilling freshers and early professionals and making them more employable in nature, thus eliminating the famous skill gap between education and profession. In this episode of Badhta India Dekho, you are going to have a very interesting couple who have started an even more interesting business on, guess what, parathas and pakoras. Yes, I think I have guessed it right. Today we have Gaurav and Gitika with us, who will share their very interesting story of how this all started, how they left their cushy jobs to start something in something very unique, and where have they reached till now. Hi, my name is Gitika Anand Gupta. I am the co-founder and chief pilot at MOPP Foods Private Limited. My job is to make my company fly. Hi, I'm Gaurav Gupta. I am the co-founder and chief dreamer at MOPP Foods, which is mad over parathas and pakoras. My job is to make every dream at MOPP true. Welcome Gaurav and Gitika to this episode of Badhta India Dekho podcast. It's our pleasure to have you here on this platform. To start with, the audience would love to know your journey right from the beginning, right from your childhood, how you grew up, your upbringing, your education, your story of meeting each other maybe, and eventually reaching till MOPP. Gaurav, you want to go first? So I was born and brought up in a small town called Bareilly, which is in UP, and I did my schooling there. Then in 1997, I went to IIT Bombay to do my mechanical BTech and MTech. It was a dual degree course. Graduated in 2002. And then I was picked up through campus interview by a company, oil and gas industry company based out of UAE, McDermott International. And I was working with that company for almost 9 years. It was back in 2003 when I went there to Dubai. In between 2004, we got married. How we met is a very interesting story. I think I'll leave it on Gitika to touch upon that. And during the course of my employment with McDermott, I did my executive MBA from Strathclyde Business School, which is a Glasgow-based university, one of the top business schools. And after that, I completed my MBA. I always had this bug in my head that I wanted to give myself one try with entrepreneurship, and which is when at the end of 2024 or early 2015, I resigned and I actually started my venture, which was actually into digital. It was actually a digital startup. Is it based in Dubai? It was based in Dubai. It was a portal like what Make My Trip or Cleartrip are in India, but only focused on Middle East. So we did pretty well for a few years. We were part of an accelerator program. We also raised early funding. Nice. And unfortunately, things became difficult beyond a point in Dubai to raise further funds. And but if you're a part of a digital venture,
it needs a lot of capital support, especially in early stage, and it became difficult. So I decided to move out. That was the time when we actually started brewing a family venture. It was back in 2016. And while we were in Dubai, we had also started investing a little bit of whatever hard-earned money we had made by that time in some food and beverage F&B ventures. They were primarily bars and lounges. We invested from Dubai itself. In 2016, this beer project that we started, it was actually a family venture, brought us back to India. Somehow it didn't work out. As it happens in an entrepreneurial journey, which is what I have learned, because after my second failure, I was kind of devastated and I didn't know which direction I should go. And it was actually Gitika who supported me at that time. She actually made me stand on my feet again, and I took up a job at that time. It was again into F&B industry. However, this thought had always been there that since we had started our entrepreneurial journey, didn't want to give up early. We had moved back to India. Gitika parallelly was also part of F&B industry, and she'll talk about her own journey. But in 2019, she started off this venture, Mad Over Parathas and Pakoras, which is MOPP Foods. How I became part of this project, this venture was very interesting. The intention was not that I would be a part of it. It was always going to be her baby, and it is still her baby. I'm only supporting her, I would say. But it was COVID which actually brought me back, which brought me into this venture. And I'm very happy about that, that I actually joined her. Although the time wasn't great, but it's been a beautiful journey since then. तो अगर हम एक वैल्यू की बात करें जो आपको बचपन से, फिर आपके पढ़ाई में, फिर आपके नौकरी में भी आपके साथ था और MOPP शुरू करने तक वो एक वैल्यू वाज ऑलवेज देयर विथ यू, तो वो कौन सा एक वैल्यू आप पिक करेंगे? कभी भी मैं ना क्लास में फर्स्ट नहीं आया, हमेशा सेकंड रहता था या थर्ड रहता था. बट उसमें कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं हुआ, बट काम करता रहा, पढ़ता रहा एंड अपने लक्ष्य की तरफ देख के आगे बढ़ता रहा. एंड जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आए तो मैं ही था जो एक्चुअली क्लियर किया. जो मेरे सेकंड थर्ड रहते थे, जो फर्स्ट आते थे, वो तो क्लियर भी नहीं कर पाए. और मेरा तो बहुत अच्छा रैंक आया थैंकफुली. एंड सो मैंने वहाँ से ये सीख लिया था कि हार नहीं मानने का. यू हैव टू कीप मूविंग. आपको जो आपने लक्ष्य की तरफ सोचा है उसकी तरफ काम करते जाओ. कभी ना कभी इवेंचुअली सक्सेस मिल जाएगी. किस फॉर्म में मिलेगी, कब मिलेगी, पता नहीं. मुझे कॉम्पिटिटिव तो परसिस्टेंस एब्सोल्युटली कि आप कांस्टेंट रख सकते हो अपने साथ. वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. Gitika, do you want to take us through your part of the journey? Okay, so my name is Gitika and I was born and brought up in Delhi. So I did my graduation and post-graduation. I've done my MBA. I have done specialization in marketing and international business. I'm a gold medalist. I'm a scholarship holder. And I used to always believe work hard, party hard, sometimes party harder. But yes, work hard, party hard. And then I also started my job through campus recruitment. And then in 2004, I got married with Gaurav and moved to Dubai. And then we lived in Dubai, and I joined as a marketing trainee, then as a marketing executive, then promoted to brand manager, then PR manager, then retail manager, then marketing manager, then marketing director. So this was my journey, all in the field of marketing only. And then in 2014, 2015, that was the time we moved from, a working professional. तो मेरी मम्मी के लैंग्वेज में इसके अंदर भूत चढ़ गया था. तो मेरे अंदर भूत चढ़ गया था एंटरप्रेन्योरशिप का. Till that time, it was a very, very comfortable, I would say, a luxurious life. One of the high points in the career. So was the journey fulfilling also till 2014-15? Yeah, so actually क्या था, in 2008 we became parents. I became a mom. I always believed in the balance of life. So that is why I always worked hard and party hard.
I wanted to be the best daughter. I wanted to be the best wife. I wanted to be the best mother. I wanted to be the best employee. I wanted to be the best student. एक टैगलाइन मैं हमेशा अपने लिए यूज़ करती हूँ कि strive for perfection but settle for nothing less than excellence. Very nice. So but I always strive to be perfect. So वो एक मेरा बहुत हाई पॉइंट था जब हमने जॉब की, मतलब सैलरी अलग आती थी बट साथ में you know children education fee, car allowance. I used to drive a convertible. Gaurav used to drive a Nissan Patrol. So it was like personal PA who used to manage my calendar. अभी entrepreneurship में मैं अपने corporate team का calendar मैं manage करती हूँ. वहाँ पे आदत थी सैलरी 31st को आ जाएगी या 1st को आ जाएगी. So it was fulfilling from one point of view, but something was lacking. And then after I became a mother and after I wanted to work more, I wanted to do okay, what next? कि भाई marketing director के बाद what next? CMO बन जाऊँगी, उसके बाद क्या? तो because that was the next position. तो उसके लिए भी I would have to change or something. तो then वो भूत आया entrepreneurship का. So but fortunately we had saved good amount of money because as I said बहुत luxurious life थी, very highly paid package था दोनों को सारे allowances मिलते थे. So saving was मतलब salary was kind of saving only. Yeah. So I invested in few bars, lounges, restaurants in India. तब मैं investor थी. अब मैं investor ढूंढती हूँ. And then also invested in a beer brand with family, but that didn't, वो जो beer brand वाला था, that didn't work out very well. तो that was a very low point. And तब लगा कि शायद कुछ गलत कर दिया है. तब तो अपना पैसा निकालने के लिए we had to leave everything what we had built in Dubai and we had to shift to India. I think so. उससे ज़्यादा down moment अभी तक अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरी लाइफ में कभी नहीं आया. तो it still makes me emotional. घर हमारा वहाँ था, हमारे पास अभी भी इंडिया में हम किराए के घर में रहते हैं, बट हमारा घर दुबई में था एंड वो पैसा आज तक हमें वापस नहीं मिला है. तो इट इज़ हमने सोचा 1 साल 2 साल 3 साल में हो जाएगा, बट इट डिडंट हैपन. आई टोल्ड माई सेल्फ दैट नेवर गिव अप. पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. वी हैव टू जस्ट गेट बैक द एनर्जीज. आई एम वेरी थैंकफुल कि आज मैं जो भी हूँ देवजीत, इट्स ऑल थैंक्स टू गॉड एंड माई पेरेंट्स. उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी, कभी भी ये चीज़ मत कहना कि मैं ये कर नहीं सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ. You can do everything as long as you have passion for it, as long as you are determined to do it. I am very lucky, again all thanks to God, that मेरे को husband भी ऐसा मिला who never stopped me कि ये मत करो because you are a girl. और मेरा बेटा भी ऐसा है जिसने मुझे आज तक कभी नहीं रोका कि आप ये मत करो because you are a girl. So my in-laws also. तो उस वक़्त जो है obviously मैंने वापस पम्प अप की, मैंने कंसल्टेंसी शुरू की. दैन उसके बाद जिन रेस्टोरेंट्स में हमने इन्वेस्ट किया था, थोड़ा दिमाग में आया, हम उसके ओनर से मिले एंड क्योंकि टेक्निकली वी वर अ स्मॉल पार्टनर बट वी वर अ पार्टनर. तो गौरव जॉइंड देम एज अ पार्टनर कम CEO इन द बार्स लाउंजेस. मैंने भी एक बार को हैंडल करना शुरू कर दिया. फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री हमेशा से मुझे अट्रैक्ट करती थी. आई रिमेंबर मेरे को कॉलेज में खोलना था बट समहाउ नहीं हो पाया, तब पढ़ाई बहुत ज़्यादा थी. तो वहाँ से जो है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री शुरू हो गई. देन आई डिड सम कोर्सेज एंड फिर वो MOPP की जर्नी इज़ अ डिफरेंट question, I think, so we'll come into it. Now that you're talking about both of you, we'll come to MOPP, but how is it managing a business as a couple? I mean, I'm sure it has its both pros and cons. And are you playing complementary roles for each other? क्या आपका कोई specific काम है जो आप करते हैं, आपका कोई specific काम है जो आप करते हैं? ये working relationship आप कैसे maintain करते हैं? You want to start? Yeah, so when you are co-founding or you have a co-founder, there is no one better than your partner. अगर आप वहाँ पे synergies बैठा सको. We never had to sit and jot down these basic rules, but they were like perhaps in us that we managed it. जो हमारे roles हैं, वो हमारी qualities के basis पर हैं. She is the one who would take the strong stand. I am more on the softer side. She takes that operations role. So जो roles उस तरह से defined Read between the lines. He's trying to tell me
that he's softer. Read between the So, lines. so we chose roles which were actually suiting our Strengths. personalities or strengths. Yeah. I think through, and she is more passionate, while I think through any decision. So, कोई भी अगर हम बड़ा decision ले रहे हैं तो we talk. ऐसा नहीं कि मैंने decision ले लिया. We talk and then we come to a consensus. अब कई बार ऐसा भी होता है कि consensus नहीं आ रहा किसी बात पे, ठीक है? Then it has been always like that कि चलो ठीक है, one of us will give up and we'll say चलो ठीक है, let's do this, but it's on you. But and we happily take that. हाँ ठीक है यार, I have conviction on this particular decision and I'm taking it and let's go ahead. And then when we decide, then we both work towards that. ऐसा नहीं है कि decision इनका लिया गया तो मैं उसमें आगे support नहीं करूँगा. मेरा मानना ये है कि एक बार decision ले लिया तो वो सही है, उसे प्रूव करो. वो हो सकता है कि वो डिसीजन जो लिया वो गलत हो, बट काम ऐसा करो, वहाँ तक करते रहो कि वो डिसीजन को आप सही करके दिखाओ. तो I will add to it कि मतलब just my point of view कि हम दोनों बहुत opposite हैं, तो That's an advantage maybe. that's an advantage. That's an Opposites advantage, attract, yes. yeah. And I think it's a combination that we really love each other. इस साल हमारी शादी को 20 years होने वाले हैं, but we still feel you know, our passion or for the love for each other is like since day one, and it keeps increasing every year. So I think love really makes a huge difference. I'm sorry, I'm talking about love. It's more No, it's no, a professional that's the chat. most तो हम relevant thing I feel. अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो तो आप उसके साथ जितना भी टाइम बिताओ आपको वो कम ही लगता है, राइट? तो मैं गौरव को हमेशा जीजी को कहती थी कि हमें ना कुछ इकट्ठे करना चाहिए, तो वील पुट आवर 100%. अभी हम जॉब करते हैं, हम 100% डालते हैं, बट हमें उसका 100% नहीं मिल रहा, और हम दोनों को एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ पे बहुत ट्रस्ट है. सो वाई डोंट वी डू समथिंग कि हम 100% इन्वेस्ट करें अपना टाइम, मनी, एनर्जी, एंड 100% हमें रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट आए. तो हमें शुरू से था कि कुछ करना है, बट वेरी क्लियरली वी हैड डिसाइडेड जब भी हम करेंगे हमारे जॉब रोल सेपरेट होंगे. सो मैं ऑपरेशंस मैनेज करती हूँ, आई ऑल्सो हैंडल HR, आई ऑल्सो हैंडल मार्केटिंग. Gaurav handles accounts, finance, legal, compliance, all those things which are on the No, I get therefore the feel of the two different roles. the numbers. He handles Yes. the numbers from the Yes. back. तो गौरव का बड़ा कंफर्टेबल रोल है, AC वाले लेदर चेयर पे बैठ के करता है, मैं गर्मी में किचन में खड़े होकर काम करती हूँ. Great to him that he could eventually figure this out. तो बिकॉज किचन में बहुत गर्मी होती है, किचन में AC नहीं होता है, और एग्जॉस्ट ऑफ फ्रेशर चल रहा होता है, और चिल्लाना पड़ता है. चिल्ला चिल्ला के मेरी वोकल कॉर्ड्स में स्वेलिंग हो गई है, तो क्योंकि स्टाफ सुनता नहीं है. तो जो है, तो हमारा जॉब रोल बहुत डिफरेंट है. हम एक दूसरे के जॉब रोल में इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करते, एक दूसरे से एडवाइस लेते हैं जब ज़रूरत होती है. सो यूजुअली जैसे आज आपने भी हम मुझे राइट पे बिठाया, तो आई एम ऑलवेज राइट, he's on the left. Does he have a choice even? never, Yeah. there is no choice. तो दोनों की ना स्ट्रेंथ्स अलग अलग हैं, दोनों की वीकनेसेस भी अलग अलग हैं, विच इज़ गुड. आई यूजुअली यूज वन वर्ड टू डिस्क्राइब मी. आई एम वेरी पैशनेट. So as I said, I want to be the best mother, Yeah. the Remember. best sister, the best wife. तो I am very passionate in whatever I do, and I think passion मुझे बहुत drive करता है, and that is how I am able to excel. And Gaurav is sometimes high risk, high return वाला बंदा, मैं थोड़ा passion पे ज़्यादा focus करती हूँ, emotional angle पे करती हूँ, but we both are very data driven. हम ऐसा कोई भी डिसीजन इसलिए नहीं लेते कि भाई मुझे पसंद है या गौरव को पसंद है या इवन किसी और को पसंद है. वी विल टेक अ डिसीजन कि भाई ये डेटा कह रहा है, लेट्स फॉलो द डेटा. Also from the MBA backgrounds, I think both of us a are role in MBAs. that, and therefore data comes in. If you want to answer, Gitika, there are a lot of young couples maybe who are seeing this show, and they are also considering this decision that do we want to start this as a couple, or should just one of us do it and the other might continue the job. What do you suggest in this kind of a dichotomy? See, I will suggest कि जब तक आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग है, देखो हमारे पास हमने जब शुरू में एंटरप्रेन्योरशिप की तो हमने पैसा लगाया, बट वो एक फेल्ड वेंचर या फिर फैमिली के साथ
कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जो नहीं सक्सेसफुल हो पाया, बट बिकॉज वी हैड बैंक बैलेंस, बट जब वो लो, एज आई सेड आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि तब मुझे सब बेचना पड़ा. आई हैड टू सेल माई ज्वेलरी उस, बिकॉज अपने आप को वापस उठाने के लिए और MOPP को स्टार्ट करने के लिए. आई कैन नेवर फॉरगेट, मैंने अपनी शादी की ज्वेलरी बेची थी, एंड मेरे लिए वो सबसे टफ टाइम था कि अब MOPP को स्टार्ट करना है. तो दिस इज़ द लास्ट थिंग. हमने अपना दुबई का घर बेचा था, सब कुछ, मतलब वी हैड टू सेल, वी हैड, एंड एक टाइम था कि हमारा बैंक बैलेंस ऐसे था कि हम इन्वेस्टर थे. तो जो है, अगर आपके पास बैंक बैलेंस है, बैकअप है, तब डेफिनेटली यू बोथ साथ में कीजिए. क्योंकि एक को फाउंडर में, आई वुड लाइक टू टेल दिस टू द ऑडियंस, एक को फाउंडर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी आपको चाहिए होती है, वो है ट्रस्ट. कि दोनों का विजन सेम है, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है. वो सिर्फ आपको आपका एक पार्टनर दे सकता है, क्योंकि वो भी उसी फैमिली के लिए काम कर रहा है जिस फैमिली के लिए आप कर रहे हो, वो भी उसी बच्चे के लिए काम कर रहा है जिस बच्चे के लिए आप कर रहे हो. तो आपका को फाउंडर अगर आपका पार्टनर हो जाए ना, तो आपको ट्रस्ट का इशू नहीं रहेगा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ ट्रस्ट, जो आपको सिर्फ आपका पार्टनर दे सकता है अगर वो आपको एक को फाउंडर मिल जाए. बट अगर आपके पास फंड्स की कमी है, तो आई विल सजेस्ट कि एक जना जॉब करता रहे जिससे घर चलता रहे, एटलीस्ट यू नो, राशन, रोटी, कपड़ा, मकान जिसको कहते हैं, वो ज़रूरी है. हम जितना मर्जी पैशन 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 बोले, बट पैशन के लिए भाई रोटी जिंदा रहना ज़रूरी है. Coming to MOPP, first of all, it's a unique name. I mean, mad over parathas and pakoras. So I have two questions in this. Maybe you can take one each. First is, what got you to this segment? I mean, was it always a passion area, something that you always wanted to do in the F&B space? You mentioned a little bit about F&B when you introduced yourself. And second is, how did this name come up? MOPP. Can I take both the questions? Because तब तो वो थोड़ी कर रहा था Yeah, MOPP, it was मैं कर रही hers, थी. yes. मैं ही आंसर करूँगी. Fair. It's my baby. एक दिन हम सोफे पे बैठे थे, me and my son. My son's name is गिरिक. तो मैंने कहा गिरिक, अब इंडिया में ना, this is about around 2018, कि आपको मैं ऑथेंटिक पराठाज एंड पकौड़ाज खाती हूँ. दुबई में तो हम वो फ्रोज़न खाते थे ला के, क्योंकि फ्रोज़न मेथी पराठा है ना. तो लेट्स ट्राई सम ऑथेंटिक. हम, एंड ऑब्वियसली मार्केट नॉलेज कमिंग फ्रॉम दुबई, एंड मतलब वी ट्रैवल टू मोर देन यू नो, आई डोंट नो हाउ मेनी, 25 कंट्रीज. हर साल 2 कंट्रीज तो कर ही लेते थे. तो ऑफ कोर्स ऑनलाइन ऑर्डरिंग स्टार्टेड, यू नो, वाज ऑलरेडी द ट्रेंड एंड इट वाज इंक्रीजिंग. बट तब इंडिया में उतना नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट 2016-17, उतना नहीं था. तो बट जब हम ऑर्डर करने लगे, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी, तो कोई भी हमें एक भी ब्रांड ऑथेंटिक पराठाज एंड पकौड़ाज जो घर पे आपके कंफर्ट में डिलीवरी करे हाइजीनिकली नहीं मिला. तो या तो वो सड़क के जो 50-60 रुपए के पराठे होते हैं वो थे, या फाइन फैंसी डाइन इन, अच्छे कपड़े पहन के रेस्टोरेंट जाओ और 500 रुपये का पराठा ऑर्डर करो. तो मैंने कहा यार, ये तो बहुत बड़ी, मतलब स्टेपल डाइट इंडिया की पराठे और पकोड़े हैं, ब्रेड्स, एवरी इंडियन ईट्स ब्रेड्स, तो ये क्यों नहीं डिलीवरी हो रही. सो देन, एज आई सेड, ऑल डिसीजंस आर डेटा ड्रिवन. I started doing R&D, which is research and development, about paratha and pakoda segment, and why no one else is there, what is the opportunity, what is the risk, what are the problem or the pain points. तो market size तो 35,000 billion 35,000 crores. करोड़ की मतलब से ज़्यादा थी. पूरा डेटा, सो हमने फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ किए, पैसा इन्वेस्ट किया मैंने R&D पे, एजेंसी हायर की, डेटा खरीदा, सब कुछ किया, एंड देखा मार्केट साइज ह्यूज नहीं है, मार्केट साइज ह्यूमंगस है, मतलब ऐसे है. सो पराठाज एंड पकौड़ाज आर परसीव टू बी नॉट अ डिलीवरी फ्रेंडली प्रोडक्ट. लोगों को फ्रेश पसंद है, सॉगी हो जाते हैं, कचकच हो जाते हैं, ऑयल हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई इट्स नॉट इन द डिलीवरी सेगमेंट. तो वन ऑफ द बार्स और लाउंजेस एक नया खुल रहा था, मतलब कि उसी कंपनी का, एंड वहाँ पे किचन फ्री था. तो वहाँ पे मैंने एक शेफ़ के साथ R&D करनी शुरू की. मूर्थल के खा लिए, चांदनी चौक चले गए, पूरी R&D चल रही थी मतलब. एंड एक्चुअली 9 महीने लगे हमें इस R&D में. एक नया बच्चा पैदा हुआ, गिरिक पहला था, दूसरा था MOPP, एंड एक वो हमें वी फाउंड अ प्रोडक्ट विच वॉज डिलीवरी फ्रेंडली, नॉट सॉगी, नॉट ऑयली, रिमेन्ड क्रिस्पी टू योर डोर स्टेप. हमें ऐसे पराठे और, तो हमने बहुत फिजिक्स लगाई, केमिस्ट्री लगाई,
तो जो अभी आई थिंक कोई पूछ रहा था कि आप इसको नॉन ऑयली कैसे रखते हो, तो एक मतलब बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ लगाया। जैसे बेसन की केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो सोक इन ऑयल करता है एट हायर टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हुआ वो सोक कर लेगा और तब वो ऑयली नहीं लगेगा। बट जैसे ही वो एक डिग्री के नीचे आया, इट रिलीजेज ऑयल एट लो टेम्परेचर। सो ठंडा हुआ तो किचकिच हो गया, ऑयल उसने रिलीज कर दिया। सो लाइक दैट हर बैटर में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमने वो स्टडी किया कि कौन सा ऐसी चीज़ है विच विल विच कैन हैव अ सोल्यूशन टू दिस पेन पॉइंट। हमने जैसे पराठे हैं कागज़ की थैली में या न्यूज़पेपर में डिलीवर होते हैं, पिज़्ज़ा बॉक्स में डिलीवर होता है। तो हमने एक्चुअली एक बॉक्स बनाया पिज़्ज़ा जैसा जिसमें 2 होल्स थे। तो हमने एंगल्स मेजर किए कि इस एंगल पे कितना मॉइस्चर निकलना चाहिए कि पराठा सॉगी ना हो। सो पराठा इज़ नॉट क्रिस्पी, पराठा इज़ नॉर्मल पराठा, इट्स नीदर सॉफ्ट नीदर सॉगी नीदर क्रिस्पी। पकौड़ाज आर क्रिस्पी ऑल्सो एंड ऑयल तो दोनों में ही नहीं फील होता, ना पराठे में ना पकोड़े में। आपको बटर लगाना है, अब हम बटर देते हैं, आप बटर लगाओ। तो विद लेस ऑयल, होल व्हीट पराठाज, गोरमे पराठाज, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ पराठाज हैं। तो हमने 2 होल बनाए, फिर हमने 4 होल बनाए, फिर हमने 6 होल बनाए। तो हमने ऐसे कर करके एंगल्स निकाले, कैसे पैक होना चाहिए, कितना मॉइस्चर रिलीज होना चाहिए, कितना मॉइस्चर रिटेन होना चाहिए कि वो सॉगी ना हो। मेन वर्ड इज सॉगी, नॉट सॉफ्ट, सॉगी ना हो, किच ना करे। तो ऐसे करके हमने पराठाज और पकोड़ाज की जब रेसिपीज़ बनाई तो मैं इनके पास गई, मैंने कहा देखो ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो पहला कस्टमर यही थे आपके? नहीं, पहले तो सबने मेरा मजाक उड़ाया, खिल्ली। जो मतलब ऑब्वियसली हम पार्टनर थे, उसने नाम दिया माँ के पकोड़े रख ले तू, माँ के पराठे रख ले तू, ऐसा कर ले। मतलब अब तू लाउंज और बाहर की कंफर्ट, अभी फिर से तू कंफर्टेबल लाइफस्टाइल में आई है। यहाँ पे एक आउटलेट में तेरे पास 60 स्टाफ हैं, अब फिर से तुझे स्ट्रगल करना है। तो मैं कहा करना तो खुद का है ना, तो मुझे करना तो कुछ खुद का है। यहाँ पे मैं पार्टनर हूँ बट मुझे करना खुद का है। तो वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा था कि मुझे खुद का करना है। तो बहुत रेजिस्टेंस हुई, फैमिली ने भी रेजिस्ट किया क्योंकि क्या था कि ये छोटा कॉन्सेप्ट है। देन गौरव फाइनली सपोर्टेड मी, दैट्स द टाइम हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। उस वक्त पैसे थे नहीं, वी वर स्टिल ट्राइंग टू गेट बैक टू लाइफ एंड तब हमने दैट टाइम MOPP वॉज बॉर्न एंड मैंने बिल्कुल पैशन से किया था कि टू मेक द बेस्ट प्रोडक्ट, टू मेक इट अ डिलीवरी फ्रेंडली प्रोडक्ट। एंड उसके बाद आई टुक सम मेंटरशिप, डिड सम QSR कोर्सेज। ने पढ़ाई तो करनी है शुरू करने के साथ साथ ही मतलब और कुछ नाम पहले कैसे पड़ा? नाम शुरू से ही था? हमने अगेन डेटा, तो हमने सबको बोला कि हमें नाम रखना है। तो जैसे किसी ने माँ के पराठे, माँ के पकोड़े, तो सबने अपने नाम सजेस्ट किए। नो, इट वाज सेपरेट। तो सबने अपने अपने नाम सजेस्ट किए, हमने वोटिंग करवाई, पोल हुआ, उसकी सब कुछ चेक किया कि बिकॉज क्या है कि आई कम फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड। तो हमें सिखाया गया कि हर नाम को हर कंट्री में हर लैंग्वेज में चेक करो, कहीं पे वो गलत मीनिंग नहीं होना चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। तो माई सन हैड सजेस्टेड दिस नेम गिरिक, मैड ओवर पराठाज एंड पकोड़ाज। तो मैड ओवर उसको पसंद था, तो ये उसका वोट था। तो सबने अपने डाली थी, हमने एक एक्सेल शीट बनाई, उसमें सारे नाम थे और सबके वोट्स, फैमिली के, फ्रेंड्स के, रिसर्च के, नाम अवेलेबिलिटी के, डोमेन के, सारे पॉइंट्स, अगेन डेटा। तो ऐसा नहीं है कि गिरिक ने सजेस्ट किया वो मेरा बेटा है तो हमने चूज़ कर लिया। तो मैक्सिमम वोट्स और मैक्सिमम फिजिबिलिटी स्टडी जैसे कहते हैं वो मैड ओवर पराठाज एंड पकोड़ास को मिले। सो दैट नेम हैज़ बीन गिवन बाय गिरिक गुप्ता, हु इज़ माय सन, एंड दैट्स हाउ द नेम केम, बिकॉज वी वांटेड अ फ्यूजन नेम जिसमें इंग्लिश और हिंदी मिक्सड हो, बिकॉज हमारे पराठास गोरमे पराठास हैं, हमारे पकोड़ास फ्यूजन पकोड़ास हैं। सो आवर विजन वॉज सिंगल ब्रांड QSR किचन शुरू में, and which after COVID changed into a multi-brand cloud kitchen strategy. Like you're talking about COVID, I'm sure और भी बहुत सारे challenges आए होंगे बिजनेस में, तो आपके टॉप 2-3 challenges कौन से थे स्केल करते वक्त, मे बी टीम हायर करते वक्त पहली बार, क्योंकि एक स्टार्टअप में हमेशा मुश्किल होता है कि दैट यू गेट द राइट टैलेंट इनिशियली, मे बी सेटअप करते वक्त आपके जो QSRs थे। आई एम श्योर कोविड में द ट्रांजिशन ऑल्सो वुड हैव हैपेंड टू ऑनलाइन। तो
क्या क्या आप अगर पिक करना चाहोगे टॉप 2-3 चैलेंजेस तो वो क्या थे? मे बी गौरव, यू वांट टू स्टार्ट? कोविड तो सबसे बड़ा चैलेंज था बिकॉज फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के लिए एवरीथिंग वाज शट. डिलीवरीज चल रही थी बट हम क्योंकि हाई स्ट्रीट में बैठे हुए थे, देयर वाज ह्यूज रेंट दैट वी वर पेइंग, तो बहुत ज़्यादा वर्न था उस वक्त बिकॉज रेवेन्यूज़ एकदम गिर गए थे. डिलीवरीज में भी बिजनेस हो रहा था बट डिलीवरीज में भी इतना नहीं था कि वो हम कम्प्लीटली सस्टेन कर पाते बिकॉज वी वर पेइंग हाई रेंट. हमारा रेंट बहुत ज़्यादा लोगों ने बाहर से खाना ऑर्डर करना बंद कर दिया था ना, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो हमने यही सीखा है लाइफ में कि भाई चैलेंज तो लाइफ में आने ही है. डिफरेंशिएट हम कहाँ पे कर सकते हैं कि उन चैलेंजेस में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढें और उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके उन पर कैपिटलाइज करने की कोशिश करें. सो जब आई रिमेंबर वी डिडंट शट डाउन आवर किचन्स. या एक भी दिन हमने सारे shut down बार्स नहीं और लाउंजेस तो बंद थे. कोविड के दौरान आपके किचन्स ओपन थे? तो सारे बार्स लाउंजेस बंद थे. एमओपीपी, दोनों एमओपीपी. कर्फ्यू वाले दिन भी जब आपको ब्रेड और दूध नहीं मिल रहा था बट एमओपीपी अवेलेबल था. तो ऑनलाइन में उस वक्त शायद 3 या 4 ब्रांड अवेलेबल थे एंड उस बाकी 2 या 3 इंटरनेशनल ब्रांड्स थे. एक था मैडोवर पराठास एंड पकोड़ास. सो हमने एक भी दिन अपना किचन बंद नहीं किया. हमने क्या किया, वी वर इन गुड़गांव, तो एमसीजी के साथ टाई अप कर लिया, पुलिस के साथ टाई अप कर लिया. तो हमने कहते हैं ना कई बार पुण्य करते हैं तो रिजल्ट मिलता है. हमने एक भी दिन अपने एक भी स्टाफ को फायर नहीं किया. हमने उनकी कोई सैलरी कम नहीं की. हमने उनकी सारी सैलरी उनको टाइम पे दी. उनके घर वालों से बात की क्योंकि कुछ लोग भाग गए कि भाई कोविड हो गया घर जा रहे हैं. एंड दे वर स्ट्रैंडेड ऑन द बॉर्डर फॉर लाइक डेज बिकॉज बसेस बंद, ट्रेन्स बंद, एरोप्लेन्स बंद, सारी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बंद, ऊबर बंद, सब बंद. लोग पैदल गांव गए थे. तो हम उनको, उनके फैमिलीज़ को मैंने बात की कि यहाँ पे हम लोग इनके लिए कमरे ले रहे हैं. तो सब अपने वो सब छोड़ छाड़ के आ गए. हमने क्या किया, एक बबल बना लिया कि आउटलेट किचन से घर, घर से किचन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना. और हमने बहुत चैरिटी की, जो पुलिस के साथ टाइप करके, एमसीजी के साथ टाइप करके, जो लोग स्ट्रैंडेड थे हमने खाना बांटा, गुरुद्वारास के साथ टाइप करके सोशल सर्विस की. हमने अपने स्टाफ का पूरा ध्यान रखा. हम कहते थे कि बिके ना बिके, बांटने के लिए बनाओ. लेट द किचन रन, लेट द किचन कुक, let's not stop Did cooking. you lose money as a business Of at course. that time? At that time, yes, we did. But क्या है कि हमने ये हमें एक कन्विक्शन था या फिर हमारा सोचना था कि एक बारी अगर हमने बंद कर दिया ना टेम्परेरीली भी, तो रीस्टार्ट करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी. तो जैसे कहते हैं ना कि सिग्नल पे अगर गाड़ी को 2 या 3 मिनट लगते हैं, उसमें बंद कर दो और उसके बाद रीस्टार्ट करो. लोगों को लगता है कि डीजल पेट्रोल बच रहा है बट वो रीस्टार्टिंग में एक्चुअली ज़्यादा लगता है. सो वही चीज़ थॉट प्रोसेस था हमारा. तो हमने एक भी दिन शट नहीं किया, पूरी कोशिश करके पूरे टाइम ऑपरेट किया. एक रेडियो चैनल ने, आई रिमेम्बर, हमें कवर किया था दिल्ली के बिग एफएम, दिल्ली के धाकड़. तो उसमें जो आरजे, क्योंकि वहीं पे वो लोग घूम रहे थे, तो जो आरजे था उन्होंने एक लाइन बोली थी कि इस गली में या तो कुत्ते मिलेंगे या एमओपीपी के पराठे, बिकॉज वहाँ कुछ नहीं था. एवरीथिंग वाज एम्प्टी एंड वी वर ओपन. एंड तब मुझे याद है 2 मास्क पहन के, 3 मास्क पहन के, क्योंकि बच्चा भी है घर पे, मदर इन लॉ भी है घर पे. वो भी एक बहुत टफ टाइम था, उसको कैसे सर्वाइव किया. बट आई थिंक गॉड रियली हेल्प्ड. गॉड इज़ काइंड, गॉड वॉज काइंड. आई थिंक ही विल, आई होप ही रिमेन्स काइंड ऑन अस. तो वी ग्रू. लोग हमसे पूछने लग गए, आप कहाँ के फ्रेंचाइजी हो? मैडोवर पराठास एंड पकोड़ास कौन सी कंट्री का है, कहाँ का है, आप कहाँ से आए हो? हमने कहा हम फ्रेंचाइजी नहीं है, हम ओनर्स हैं. तो हम बहुत पॉपुलर हो गए सडनली गुड़गांव में, क्योंकि किसी को अगर, जो लोग पीजीज के थे या जिनको खाना नहीं मिल रहा था, जिनके पास कुकिंग फैसिलिटी नहीं थी, तो तब हम बहुत पॉपुलर हो गए. बट ऑब्वियसली हमारी सेल्स उतनी नहीं थी जितनी ऑफ कोर्स होनी चाहिए. तो बर्न हो रहा था. तो तब आई थिंक गौरव विल एक्सप्लेन कि कैसे हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हुई. वी हैड टू पिवट. हाँ, उस वक्त हमने अपनी स्ट्रैटेजी को, सी वही पॉइंट है, एज एंटरप्रेन्योर टू कीप हसलिंग. तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे सबसे ज़्यादा खर्चे कहाँ हो रहे हैं जो बर्न कर रहे हैं. तो हमने एक आइटम देखा, उसमें रेंट बहुत बड़ा था, हैवी आइटम था, बिकॉज हम रिटेल आउटलेट्स, हाँ, हाई स्ट्रीट पे बैठे थे. इट्स अ बिजी मार्केट. QSR विच इज़ हाई स्ट्रीट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, वहाँ से अगर हम क्लाउड किचन स्टडी में चले जाते हैं, एज इट इज़ उस वक्त हमारा सिर्फ डिलीवरी था, सिर्फ 100% डिलीवरी हो रही थी. तो मैं रेंट 1 लाख रुपए का क्यों पे करूं, जबकि मैं
25-30 हज़ार रुपए के रेंट में आस पड़ोस में सेम ही डिलीवरी कर सकता सेम डिलीवरी कर मे सकता भी ज़्यादा रीच आ हमने सकता है। MOPP से तब शुरू किए थे, तब हम खाना बांटते थे, तो जो लोग बीमार थे हमने कोविड मील शुरू की। हम कोविड मील्स कुछ फ्री में देते थे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और बहुत हाई रेट पे देते थे जो लोग अफोर्ड कर सकते थे। हमने देखा कोविड मील्स हमारी बहुत पॉपुलर हो गई हैं, क्योंकि हम ही थे एक जो कोविड मील्स दे रहे थे और कोई दे ही नहीं रहा था एट दैट टाइम। वंडरफुल आइडिया। बट तो हमने, जैसे किसी को कोविड हुआ तो 7 डेज वो क्वारंटीन है, तो वो हमारा उसके साथ पैकेज था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, लेस ऑयल, बेसिकली नील ऑयल, एंड वो बहुत एक सक्सेसफुल फिनोमेना हो गया। और फिर उसके बाद लोगों ने हमसे और मील्स मांगने लग गए और थालीज मांगने लग गए। तो तब गौरव तो क्लाउड पे thought तो हम of- ऑलरेडी मूव कर गए थे, तो वहाँ पे ये भी था कि एक ही लोकेशन से हम मल्टीपल ब्रांड्स ऑपरेट कर सकते, तो हम सोचने लगे कि सेकंड ब्रांड क्या किया जाए, और उसको कोविड मील्स हम चला ही रहे तो थे। वर्ड था कोविड मील्स, थे मील्स। तो हमने वहाँ से ब्रांड नेम सोचा कि इसको हम एक ब्रांड नेम लॉन्च करते हैं, ब्रांड लॉन्च करते हैं मीली, MEALY, जो मील्स पे Meals फोकस पे करेगी, सिंगल पोर्शन मील्स, राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल, थाली, चपाती, रोटी, दिस एन इंडिपेंडेंट ब्रांड। इट्स इंडिपेंडेंट ब्रांड, सेकंड ब्रांड जो हमने Second लॉन्च brand. किया, मीली। एंड वेरी प्राउड टू से कि हमने फर्स्ट ब्रांड में सक्सेस चखी, दूसरे ब्रांड में उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सक्सेस चखी। मीली आज की डेट में MOPP जो कि हमारा फ्लैगशिप फर्स्ट ब्रांड है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्स करता है। सो वेरी प्राउड टू से कि हमने एक नहीं बल्कि 2 ऑनलाइन डिजिटल ब्रांड्स फूड के तो स्पेस जैसे में आप इसके बनाए। बारे में बात कर रहे हो, थोड़ा ऑडियंस के लिए आप थोड़ा अपना बिजनेस मॉडल ही ब्रेक डाउन करके बताइए। तो अभी करंटली हम लोग, बिकॉज वी आर नोन एज अ क्लाउड किचन ऑपरेटर, तो हमारा ऑलमोस्ट 97% बिजनेस ऑनलाइन ही आता है, विच almost इज पूरा ही जोमेटो, स्विगी, transform मैजिक हो पिन गया। एंड ONDC, एंड 3 to 4% टिपिकली जो टेक अवे या कॉर्पोरेट ऑर्डर्स रहते हैं रहता है। तो आपका QSI आउटलेट्स है अभी भी, जैसे नहीं, Sector 30? नहीं, वो सारे होता क्लाउड है। हैं समझ गया। अभी एट दिस पॉइंट, सारे क्लाउड हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी होगी जो हाइब्रिड है, कि हम उसमें से लेट से अगर हम 10 किचन्स खोल रहे हैं, तो उसमें से 3 या 4 विल हैव फेस, हाई स्ट्रीट में होंगे, दैट विल हेल्प अस इन ब्रांडिंग ऑल्सो, एंड बाकी के 5-6 विल बी कम्प्लीटली क्लाउड किचन्स। Sure, of course, सो होता है। वो स्ट्रैटेजी हाइब्रिड रहेगी मूविंग फॉरवर्ड, बट अभी सारे के सारे क्लाउड किचन हैं। सो कमिंग बैक टू द कॉस्ट स्ट्रक्चर, सो मैं आपको जो क्लाउड किचन का टिपिकल कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो समझाता हूँ। सो जो फूड में आपकी, अगर आप एग्रीगेटर्स विच इज जोमेटो, स्विगी के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं, तो 2 कॉस्ट एलिमेंट है विच आर योर डायरेक्ट कॉस्ट। एक तो एक्चुअली 3, एक तो फूड कॉस्ट है, दूसरा पैकेजिंग है, और तीसरा आपकी जो डायरेक्ट कमीशन है। सो अगर आप 100 रुपये का खाना बेच रहे हो, तो उसमें आपके ये 3 फिक्स कॉस्ट होंगी। अगर 100 का बेच रहे हो तो एक परसेंटेज आएगी, अगर 1000 का बेच रहे हो तो वो परसेंटेज भी सेम ही रहेगी। तो ये दैट्स व्हाई इट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट। सो अगर फूड कॉस्ट की बात करें तो टिपिकली जो हमारा मॉडल है, एंड ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल इज, बिकॉज क्लाउड किचन के अंदर भी डिफरेंट मॉडल्स हैं। देर आर सिंगल किचन क्लाउड किचन्स, सिंगल ब्रांड क्लाउड किचन्स, देर आर मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन्स। जो सिंगल ब्रांड क्लाउड किचन्स हैं, उनका मॉडल इस तरह से डिफरेंस है कि उसमें आप एक ही ब्रांड पे फोकस करते हो, तो आपकी कॉग्स और एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कॉग्स कम होनी चाहिए, विच इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू हायर होनी चाहिए, सो दैट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन हायर है सिंगल ब्रांड के साथ। सो अगर आप देखोगे टिपिकली जो भी सिंगल ब्रांड क्लाउड किचन्स हैं, वो मोस्टली हाई एवरेज ऑर्डर वाले ब्रांड्स होंगे। जो मिड सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के जो क्लाउड किचन्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी ब्रांड, और उसका, और वी आर ऑल्सो मल्टी ब्रांड बिकॉज वी आर ऑल्सो टारगेटिंग द मिड सेगमेंट मार्केट। तो टिपिकली फूड कॉस्ट इज अबाउट 30%, आपकी पैकेजिंग अबाउट 5%, तो 35% डायरेक्ट कॉस्ट, एंड देन जो एग्रीगेटर कमीशन है विच इज़ अबाउट 25%। सो लेट्स से 60% इज योर डायरेक्ट कॉस्ट, जो आता ही आता है, जो आता ही irrespective आता है। अगर आपने 100 का खाना बेचा, 1000 का बेचा, लाख का बेचा, 60% आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है इन दिस क्लाउड मॉडल। 40% बचता है आपके पास, विच इज़ योर ग्रॉस मार्जिन। अब उसमें आपको खेलना होता है कि हाउ यू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। सो अब टिपिकली जो HR कॉस्ट होती है, जो हमारा करंट स्केल है, और मैं आपको अभी करंट स्केल की बात कर रहा हूँ, वो HR कॉस्ट हमारी करीब 14 से 15% के आसपास रहती है। दैट्स इट। हाँ, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, और अगर हम मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी पे और भी ब्रांड्स ऐड करेंगे आगे चल के, ये 10 या 12% भी रह सकती है हायर स्केल, बट मैं आपको करंट स्केल की बात कर रहा हूँ। और बाकी आपकी करीब 10% और भी कॉस्ट हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्यूल कॉस्ट हो गई, मिसलिनियस रिपेयर कॉस्ट हो गई, और बाकी की मिसलिनियस खर्चे। सो ओवरऑल यू एंड अप विद अबाउट
about 15% at the store level EBITDA at our current scale. At a cloud kitchen level EBITDA. At a cloud kitchen level EBITDA. And then obviously, since we are in a operating in a structured manner, so there are corporate costs, and let's not go there because we are typically talking about a cloud kitchen's cost. So 15% is what is achievable. It can get to 20% depending how efficiently you are operating and how many brands you are operating and what is your unit level costs But you are and saying packaging. it's in that flexibility is also in the range of 5 to 10%? मतलब 15 का 20 हो सकता है, कितना stretch हो सकता है वो depending on efficiency? Personally, in my experience, unless you are a legacy brand, old brands which have been operational for ages and you were onboarded way back, तो आप शायद बहुत lower commissions पे होगे. बट अगर कोई अभी स्टार्ट कर रहा है तो जो मार्केट के कमीशंस हैं एग्रीगेटर्स की वो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे जा चुके हैं. Right. सो अगर तो कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर कोई अगर बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके लेट से 500 आउटलेट्स हैं, वो शायद 15% के कमीशन पे काम कर रहा होगा. बट मैं, बिकॉज मैं 4 साल पुराना हूँ केवल, तो मैं 25% के कमीशन पे काम कर रहा हूँ. सो उसके लिए वो 10% EBITDA सीधे बॉटम लाइन पे सेव हो रहा है. राइट. सो वो शायद हो सकता है 25 या 30% पे भी ऑपरेट कर रहा हो. बट मैं आपको टिपिकली बता रहा हूँ जो अभी के टाइम पे जो लोग लॉन्च किए हैं या जो लॉन्च करने वाले हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ एग्रीगेशन जो ऑर्डर्स है इज़ हायर कमीशन कॉस्ट. सो टिपिकली 15 से 20 इज़ द अचीवेबल एरिया. अगर आप हायर AOV अचीव करवा सकते हो लॉन्ग रेंज लॉन्ग ओवर अ लॉन्गर पीरियड, then maybe 25%. बट आप ये सोच के चलिए दैट वुड मीन कि आपकी फूड कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट 20 से 25% आनी पड़ेगी, विच इज़ एक्चुअली इन आइडियल सिचुएशन. बट वो तभी अचीव हो सकती है जब आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू हायर हो. तो इस F&B काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल में जैसे आपने समझाया, तो आप क्या सजेस्ट करोगे अप टू कितने यूनिट्स पे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आने लग जाता है डिपेंडिंग ऑन कॉर्पोरेट कॉस्ट? एंड ऑडियंस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट कॉस्ट वो होता है जो सेंट्रल कॉस्ट होता है, और वो सेंट्रल कॉस्ट ज़रूरी नहीं है स्केल के साथ वो भी उतने ही X से मल्टीप्लाई हो. दैट रिमेन्स मोर और लेस फिक्स्ड विद मे बी ईयरली सर्टेन 10 to 15% इंक्रीज. तो आपके हिसाब से therefore how many cloud kitchens or units do you need? Yeah, I see it's a very difficult question to answer because cloud kitchen में it depends on how you are operating and at what margins you are operating. आपकी costs कितनी है, आपका average order value कितना है, and what corporate costs have you added, because that's also subjective. Personally मुझे ऐसा लगता है कि in a journey of any startup, a food startup or a cloud kitchen startup, हर चीज़ को एक सही टाइम पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए. करेक्ट. सो फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत तरह की कॉस्ट होती हैं. HR, तो यू मे हैव HR एग्जीक्यूटिव, HR मैनेजर्स, आपके पास मार्केटिंग की है, सोशल मीडिया मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोक्योरमेंट का प्रोक्योरमेंट मैनेजर, प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद आपके ऊपर ऑडिट की टीम होती है. ठीक है. फिर उसके बाद आपके ऊपर ऑपरेशंस की टीम होती है. अब उसमें आप कितनी लेयर्स डालते हो, एट किस लेवल पे डालते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ऑपरेट कर रहे हो. सो अगर मैंने लेट से एंड आई फॉरगॉट, मेन थिंग इज़ यू नीड टू हैव अ कॉर्पोरेट शेफ जो आपके सारे किचन्स मैनेज कर रहा है, राइट, विच इज़ एन एक्सपेंसिव रिसोर्स एज वेल. तो आप किस कॉस्ट को किस वक्त ऐड कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कि अगर आपने ये सारे हेड्स जो मैंने आपको काउंट किए और आपने ऐड कर दिए और आपके 2 या 3 किचन है, तो आप कभी भी वो कवर नहीं कर पाओगे. बिकॉज कितना भी आप अगर 20% EBITDA पे भी ऑपरेट कर रहे हो और आपकी 10 से 15 लाख की भी सेल है तब भी आप ये कॉस्ट नहीं कवर कर सकते. सो एडिंग द कॉस्ट्स ऑल दीज हेड्स एट द राइट स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने बहुत जल्दी ऐड कर दिया तो इट विल बी डिफिकल्ट. सो टिपिकली मुझे लगता है कि इन आर काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल, once we get to about 10 kitchens, we should be more or less covering all the corporate costs the way we have added our corporate costs, right? So that's what I. तो अभी पिछले, जैसे आप कह रहे थे 5th ईयर होने वाला है, ये पिछले 5 साल में जर्नी क्या रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, and if you can add club that answer to what's the vision, maybe अगला 5 साल, अगला 10 साल क्या देख रहे हैं आप? So as Gitika mentioned, 2019 May was the beginning, first kitchen, first brand. बीच में कोविड का पीरियड आया था. We did not shut down, but of course there was difficulty. The growth got slowed. Our next rounds got delayed. But at the same time we added brands. We grew during COVID actually. That was a good part.
We scaled and grew during that period. So from that time, from one kitchen, one brand, we are right now 5 kitchens, 4 brands. So technically अगर numerically बात करें तो उस वक्त अगर 1 listing थी, 1 online restaurant. So today we have 20 online restaurants. So it's kind of 20x in that sense. Now we are opening in Faridabad also. We are also very opening nice. up in Faridabad, hopefully within a month itself, within this month. And that would add another 4 listings because all the 4 All the brands, four will, brands be will come, operating yeah. from there. So we have grown in that sense. Number of orders, so currently we are doing about 30,000 to 32,000 orders on a monthly basis. Our average order value is roughly about 270, and we have a employee strength of about 85 to 90 people, roughly 100 people if it include the people who are not on payroll but are contract staff. So that was, and when we started it was 5 people. So obviously we have scaled and grown multiple times. Where we want to be over the next 5 to 7 years is to get to at least 300 kitchens and at least having 10 brands. Something what likes of unicorns of this cloud kitchen industries have done, and I won't name, but there are unicorns in this industry who have multiple brands. Our aim is also similar, that we get to 10 brands and 300 kitchens over the next 5 to 7 years, and at least a revenue of crossing 1,000 crores. That's the vision that we have. We're working towards it. There will be a lot of challenges, lots of ifs and buts in that journey. That should be fun given It is going to be, yes. given the way how you both have managed it. ये तो नंबर की बात है, but अगर आप let's say from year 1 sales to So we started with 1 lakh rupees of sale, and currently we are doing about 85 to 90 lakh rupees of monthly fantastic revenue. and almost a 10 CR Yeah. run rate. Yeah, 10 CR run Annually. rate. Yes. Fantastic. तो other than numbers, of course, it's great numbers that आप दोनों chase कर रहे हैं. इसके अलावा subjectively अगर आप impact की बात करें, and you were saying कि मैं हमेशा से as an entrepreneur impact में जाना चाहता था, तो वो विजन आपको कैसा दिखता है जब आपका 10,000 करोड़ पे आप पहुंच जाओगे या मे बी द नेक्स्ट यूनिकॉर्न इन द F&B बिजनेस पहुंच जाओगे, तो क्या विजन है आपका, क्या दिखेगा? हाउ विल द वर्ल्ड लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ MOPP एंड ऑल द अदर ब्रांड्स? See, one of the reasons why we wanted to start our own business was also because of the impact, because हमें लगा कि how many employment opportunities we can create, हम कितने लोगों को जॉब दे सकते हैं और कितने लोगों का घर चला सकते हैं. It's a great feeling, trust me. मतलब entrepreneurship gives you so much satisfaction कि आज 100 लोगों का घर चल रहा है MOPP की वजह से. अगर कोई एक नया बाइक खरीदता है MOPP की वजह से, किसी के घर में कभी फ्रिज नहीं था, उसने फ्रिज खरीदा. And then I'll add something here. So we as a startup strongly believe कि अगर कोई स्टार्टअप या वेंचर ग्रो करता है, स्केल करता है, तो उसका बेनिफिट पूरी टीम को मिलना चाहिए, राइट? सो फ्रॉम लाइक एट एन अर्ली स्टेज इटसेल्फ वी ऑलरेडी हैव एन ESOP प्लान इन द कंपनी. That's a different thing that with all due respect, with the level of staff that we employ in the kitchen, they are not educated most of the times and they don't understand what ESOP is. And imagine we are educating them what ESOP means and what we have value already it brings. allocated. And they have been allocated maybe? Yes. So Many wonderful. of them. And when I educate and coach them about what value it brings, because they don't know what ESOP is, with all due respect, because of their education levels. So I show them how Zomato, how Paytm, उनमें कैसे लोगों के मिलियनर बन गए क्योंकि उनके पास ESOPs थे. तो I show them all those news pieces टीवी पे बड़े बड़े दिखा के. मैं भी बोलती हूँ कि जिन बार्स और रेस्टोरेंट्स में हम पार्टनर हैं तो वहाँ पे ESOPs नहीं है, बट आप एक क्लाउड किचन में हो और आपके पास ESOPs हैं, आप कंपनी का हिस्सा हो, इट गिव्स आप मालिक हो. आप मालिक हो. देवजीत, आई वर्क विद पैशन एज आई सेड. मेरे लिए MOPP का स्टाफ और टीम जितना मर्जी मैं उनको डांट लूँ, गुस्सा कर लूँ, एक फैमिली है. दैट्स द राइट वर्ड. बिकॉज एक सर्कल है, वो ग्रो करेंगे, कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो वो ग्रो करेंगे. इट्स अ सर्कल. वी कांट ग्रो विदाउट देम एंड दे कांट ग्रो विदाउट अस, एंड वी कांट ग्रो, मतलब इट्स वी एज फाउंडर्स, we as company and they as employees. So it's a circle and it is an immense feeling. I call हमारे staff को MOPP family. तो अगर कुछ भी होता है तो it's MOPP family. I can proudly say एक भी दिन आज तक ऐसा नहीं गया कि मैंने इस MOPP family के लिए, अपने staff के लिए, अपनी टीम के लिए प्रे ना किया हो.
एवरी डे आई, जैसे हम अपने बच्चे के लिए प्रे करते हैं, आई प्रे फॉर ऑल दी स्टाफ्स and my team because we are a family and all these staff, मैं इनको मतलब शायद कुछ लोग नहीं समझ पाते, कुछ लोग समझ पाते हैं, मैं डांट भी लूँ, गाली भी दे दूँ, but they are my family. Fantastic. And you are a very adorable couple. The organization is also picking up well. Being a resident of Gurgaon, I am an ardent fan of your brand. I think Thank you so much. Would give regular orders. And whenever वो शाम के time पे you kind of get that urge, MOPP kind of comes first to our mind. So all the best. Thank you so much. To both of you for the organization moving towards an unicorn now. Last, if you want to leave a message for all aspiring entrepreneurs watching this show, and there would be a lot of people who have just started thinking about it but maybe still not shared with family, with friends, even with themselves that this is something that I would want to do as entrepreneurship. There might be some people who have started it but are struggling and are going through that phase. Some people who would have shut down their businesses and now are looking for more inspiration. So what advice or message do you want to leave for them? You start first. Okay, so the first advice, I think there are multiple things that I can say here. The first advice is definitely this, that एक बारी ज़रूर ट्राई करना लाइफ में. कब उसकी कोई एज नहीं है. इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट अप. कभी भी स्टार्ट कर सकते हो जब भी आपको लगे कि आप. Never early also. या इट्स नेवर अर्ली और नेवर लेट. सो डेफिनेटली ट्राई करो, कोशिश करो. जो सक्सेस का पाथ है वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा. बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, गिरोगे भी, बट आपने केवल ऊपर देखना है. तो नेवर गिव अप. यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू फेल. दैट इज़ द मंत्रा. सो फेलियर इज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन इन योर जर्नी टू सक्सेस. सो ये चीज़ मान के चलो. मैं पर्सनली फेलियर को एक ऑप्शन ही नहीं रखता हूँ. As I said, if I have taken a decision, I make sure that I prove that was the right decision. एक मूवी का डायलॉग भी तो था उसमें. हाँ, वो मैं एक बार कमिटमेंट कर दूं. नहीं, not that. There was a dialogue, Satish Kaushik, who's no more actually, that he said that in a movie called Panga, that जीत अक्सर उनकी हो जाया करती है जो हार को टालते चले जाते हैं. It's a very very impactful So line. very impactful dialogue, and that actually inspired me a lot at that time. So that is something, one message to everybody, that please don't be afraid of failure, because unless you fail you will not learn. Practically you actually never fail. You either succeed or you learn. That's how you should. Gaurav, that first courage only is the big step. To both of you spoke about the luxurious life or amenities that you had, but to take that courageous decision, डर के आगे जीत है जो कहते हैं, first you have to go ahead of it and see कि क्या है, उसके बाद जीत या हार पता लगेगा. I think Debojit, all of us have some talent, all of us have some skill. कई बारी हमें खुद को नहीं पता होता, कई बारी हम उसको courageously step नहीं लेते. बट मुझे ऐसे लगता है कि आई यूजुअली से इट, मैंने एक अपना कोट बनाया हुआ है कि वी ऑल हैव अ टैलेंट, वी ऑल हैव अ स्किल. इट्स लाइक यू नो अ स्पार्क, वी हैव टू लाइट इट. वो एक करेज चाहिए कि बस वो माचिस जलाने वाली बात है, टू ब्राइटन द वर्ल्ड अराउंड यू फॉर योर ओन सेल्फ एंड फॉर अदर्स. नॉट ओनली फॉर अदर्स बट फॉर यू ऑल्सो. सो वो आपको एक चिंगारी चाहिए विच विल यू नो गिव यू दैट स्टेपिंग स्टोन कि light your skill, light your passion, and brighten the world for yourself and for the world around you. That is very important, and we all have it. Whether male, whether female, whether young, whether old, we all have it. Sometimes we have to find it where it is. True. Yeah. And personally, I have 3 words, which is mantra of my success personally. I call it my 3 P's of success. One is passion. बिकॉज आई थिंक अगर आप कोई भी काम पैशनेटली करोगे ना, उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. सेकेंड इज़ परसिवेरेंस, बिकॉज जैसे हमने कहा है कि यू नो जीत अक्सर उन लोगों की होती है जो हार को टालते रहते हैं. सो यू हैव टू हैव लॉट ऑफ परसिवेरेंस. मतलब मानना ही नहीं है कि ये ऑप्शन है, कुछ ना कुछ करके सोल्यूशन निकालने हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कोविड का था. थर्ड इज़ पेशेंस. आजकल की जो न्यू जनरेशन है, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि वो लोग को सब कुछ ऐसे चाहिए, ऐसे कि, और अगर एक दिन कुछ सक्सेसफुल नहीं हो, अगले दिन एक वर्ड हो जाता है डीमोटिवेट हो गए. ये डीमोटिवेट एक नया वर्ड डिक्शनरी में आजकल की जनरेशन है कि ये मैं डीमोटिवेट हो गया हूँ, मैं इरिटेट हो गया हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ.
मतलब हम अभी तक फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। तो जो है सो पेशेंस अगर कहीं पे मिलती है बच्चों और न्यू एंटरप्रेन्योर्स, प्लीज़ जाके खरीद लो, बट पेशेंस चाहिए। अगर यू विल बी पेशेंट कि येस थिंग्स विल हैपन, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, गिव योर 100% passion, have perseverance, then things will fall into its place eventually. बट इफ़ यू गिव अप ऑन डे वन एंड सोचो कि आज मैंने बिजनेस शुरू किया, कल प्रॉफिटेबल हो जाएगा और परसों मैं मिलियनर बन जाऊंगा, एंड दिस इज़ व्हाट द जेनजीज एंड द द न्यू एंटरप्रेन्योर्स थिंक. Please don't think like that. Please guys, have passion, have perseverance, but more important than these two is have patience, and trust me, you will be successful one day. Thank you so much, both Thank of you. you, for Thank you, coming to Debajit. Barta India Dekho. This is actually a true example of India moving forward, seeing the perseverance and persistence that you took multiple times spoke about. Very, very glad that you came, and I'm sure the youth of India would have benefited a lot from your inputs. Thank you. Thank you. for Thank you coming. so very much much. for Thank you, calling Debajit. us. Thank you so much for inviting us. Thank you so much for your time, and we really appreciate. And I hope the young entrepreneurs take that plunge, take that step, and may all of us be successful and happy.